Hello everyone, welcome to this live session on Ask Me Anything with Coding Ninjas. My name is 𝗁𝗲𝗂𝗶𝗲 and I will be taking you through this live session. So guys, if any one of you can confirm if I'm audible or not, if my screen is visible or not. So just write it down in the chat if I'm audible, if my screen is visible or not. And if it is, and if it isn't, just write it down in the chat. And in the meanwhile, I'll go forward and introduce myself. So guys, hi everyone, once again. My name is 𝗁𝗲𝗂𝗶𝗲 and I'm a student. I'm a final year student of Delhi Technological University. I'm currently pursuing computer engineering, a bachelor's degree in computer engineering. And I had been an intern with Microsoft this summer, and I'll be joining Microsoft as a software engineering, as a software engineer in the upcoming year as well. So those of you who joined, please confirm if I'm audible or not. So आज के live session में we'll be talking in both Hindi and English so that we can reach the maximum audience. So mostly ये live session जो है, it will be an Ask Me Anything session. Just to start off with, I'll discuss how you can become a software engineer, how you can for those who are not really clear with the mind map कि क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना चाहिए, and what all you should do to become a software engineer. We'll discuss that as well. ठीक है. So okay, I'm audible. Great. Okay, thank you. So guys, to start with, to become a software engineer, first of all, आप सबको पता ही होगा, there are a few things that everyone should know as a software engineer. So first is DSA, data structures and algorithms. ठीक है. सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आगे. ठीक है, ऐसी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, एंड कोर सब्जेक्ट्स में भी आपके जो कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड फाइनली व्हेन यू हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी कवर्ड, देन इट इज अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट? So let me remind you guys that this is an Ask Me Anything session, right? कुछ भी questions आप पूछ सकते हो regarding your a career in MAANG, right? आपका माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप जाना चाहते हो, आप एप्पल में जाना चाहते हो, अमेजोन में जाना चाहते हो, नेटफ्लिक्स में, गूगल में, और एनी काइंड ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू लर्न, हाउ टू प्रैक्टिस, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, यू कैन आस्क मी इन दिस सेशन. ठीक है, so how you can ask, just write it down in the live chat and I'll pick up the question, then I'll answer. ठीक है. So to start with, right, first of all, to become a software engineer, आपको करना क्या है? First of all, you have to learn data structures and algorithm. So जब भी आप first year में आते हो, right, in your college first year में आपको you'll hear this word a lot, DSA, data structures and algorithms. So talking about data structures and algorithms, so data structures and algorithms कुछ नहीं होता है. It is basically data structure means कि भाई आप डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हो, how you are structuring data, right? ठीक है. And algorithms are basically used to manipulate data, to play with data efficiently. इन सब चीज़ों का एक गोल होता है ना, क्यों हम कर रहे हैं किसी चीज़ को भी. सो गोल इस चीज़ का ये होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का, कि आपका जो डेटा है या फिर आप कुछ भी काम जो कर रहे हो ना, आप एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर से क्या कराना चाह रहे हो? यू वुड बी प्लेइंग विद डेटा ओनली, राइट? उसको स्टोर कर रहे होगे, मैनिपुलेट कर रहे होगे, कुछ ना कुछ उसके साथ एक्टिविटी कर रहे होगे. सो द एंड गोल इज कि भाई आपके पास रिसोर्सेज फाइनाइट है. ठीक है, सो हाउ यू मेक यूज ऑफ दोस फाइनाइट रिसोर्सेज एफिशिएंटली, दैट मैटर्स. ठीक है, so that is why data structures and algorithms company ज़्यादा focus करती हैं. They this is the basic criteria that the company judges you on. ठीक है, that how good you are in DSA, how good you are in problem solving. That is how a company evaluates if you can be a good candidate for that particular job or not. ठीक है, तो इसलिए data structures and algorithms काफी ही ज़्यादा एक buzzword है. ठीक है. So once again guys, please let me know if my screen is visible, am I audible and all. ठीक है. And let me remind you guys that this is an AMA session. So just feel free to write out any questions that you have about anything. ठीक है. Okay. So we have a first question. Let me display that onto the screen first. Okay.
So, Shaikh Abdul is asking how a 2022 pass out can get into and become a full stack developer. So, guys, about full stack development, ठीक है? So, full stack development के लिए यार, I would, Shaikh, I would suggest you first of all learn a little about data structures and algorithms, ठीक है? Because आप web development में भी जैसे मैंने अभी कहा, you would be dealing with data only, ठीक है? End goal is to efficiently manage the data, ठीक है? सो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए फर्स्ट स्टेप इज गो फॉरवर्ड एंड लर्न डीएसए। डीएसए सीखो थोड़ा, इतना एडवांस नहीं कि आप किसी कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुस रहे हो, उतना एडवांस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लर्न द बेसिक्स ऑफ डीएसए, ठीक है? कुछ 100-200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, दैट विल बी इनफ। And after that, start with front end first of all. Okay, this is my personal experience that you can start with front end first of all. That is good to start with, and then you can go on and learn back end. Okay, and once you have learned front end and back end, then you become a software full stack developer, right? So this is how you can, it's not about कि आप कब pass out हुए या आपका degree क्या है, कुछ नहीं है. You can start learning about web development. That is not necessary कि आपका क्या background है या फिर आप कब pass out हुए. So I hope that answers your question. So okay, we have a few questions as well. So how to know that? Okay. So please see me the roadmap for third year, fifth sem IT engineering if it's not started. Okay. So Syed has this question now. A roadmap for third year, third year IT student who has not yet started learning anything. So don't worry, Syed, अगर आपने अभी कुछ नहीं शुरू करा है, you can easily learn. There are road maps हमारे पास, हमारे YouTube channel पे. If you see, there are various road maps. How to learn DS in 30 days, how to start with web development in 30 days. तो आप एक बार वो वीडियोस देखो, उससे आपको एक श्योरली गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? And if you want to learn things quickly, जल्दी से जल्दी आप सीखना चाहते हो, you can even go and check out Coding Ninja's website, that is Code Studio. वहाँ पे आपको गाइडेड पाथ्स मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें सिखाएंगे, ठीक है? So you can go with that. And if you feel like कि आप अभी if you are in fifth sem, right? So अगर आप उसको अभी थोड़ा और टाइम दे सकते हो ना, तो if your goal is final placements and not internships, तो आप थोड़ा और टाइम दो इसको, अच्छे से डीएसए करो rather than जल्दी जल्दी करने के बजाय, ठीक है? Then you can easily crack any of the internship or placements that you want. I hope that answers your question. Okay, so moving forward, ठीक है, क्वेश्चंस लेते रहेंगे हम बीच बीच में, ठीक है? और जनरली क्वेश्चंस जो होंगे वो इसके अराउंड ही बेस्ड होंगे आपके. So we'll keep on answering questions, ठीक है? Let's make this an interactive session, guys. Let's not hold your questions. आपने questions मत hold करना, जो भी questions हो आपको. I don't think that it is silly one or कोई सा भी, आप just write out your questions. So okay, moving forward. So सबसे पहले डीएसए का हम लोग बात कर रहे थे. नाउ अब अब कोई भी चीज आप सीखते हो, जैसे कोई भी आपने सब्जेक्ट मैथ सीखा था, सो देयर आर 2 to 3 थिंग्स लाइक व्हाट कैसे सीखना है उसको, दैट इज हाउ टू लर्न डीएसए एंड हाउ टू प्रैक्टिस डीएसए, एंड देन उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आती है कि भाई रियल वर्ल्ड में कहाँ अप्लाई होता है, राइट? सो अबाउट लर्निंग डीएसए, 2 तरीके हैं यार. आप या तो कोर्स ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो. नाउ दोनों चीजों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ स्टडी का तो ये है कि आप अपनी पेस पे चल सकते हो. जनरली लोगों को जो ये लगता है कि हम लोग अपनी पेस पे चलना चाहते हैं, आज पढ़ेंगे, कल कॉलेज का काम करेंगे, परसों पढ़ेंगे, ठीक है? बट कोर्सेज में भी, इवन कोडिंग निंजा के कोर्सेज में भी, यू कैन स्टडी एट योर ओन पेस, ठीक है? अब ये फीचर आ गया है. ऑल्सो सेल्फ स्टडी में ये होता है कि यार आपको ना काफी सारा ही मटेरियल आपको चाहिए होगा पढ़ने के लिए, है ना? सो देयर वोंट बी एनी स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, है ना? कोई गाइड करने वाला नहीं होगा. सो ये थोड़े थोड़े कॉन्स हैं जो कि सेल्फ स्टडी के रहते हैं. दैट इज व्हाई यूजुअली पीपल प्रेफर फॉर कोर्स, ठीक है? आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो. कोडिंग निंजा की साइट आप चेकआउट करना यार, उस पर काफी सारे डीएसए के कोर्सेज हैं. एंड ऑल्सो वहाँ पे आपको कोड स्टूडियो का प्लेटफॉर्म मिलेगा which provides free courses as well, DSA, web dev, or any other technology, right? So let's again check for questions. Okay, ठीक है. So ठीक है, I guess moving forward ये वाले questions आंसर हो जाएंगे जो सबके हैं चैट में, ठीक है?
सो अबाउट प्रैक्टिस ऑफ डीएसए कि भाई अभी कोई पूछ रहा था कि भाई हाउ डू वी प्रैक्टिस डीएसए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो अगेन या तो आप फ्री रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हो जाओ, राइट. अदरवाइज यू कैन गो ऑन फॉर कोर्स मटेरियल. जैसे अगर आप कोडिंग जैसा कोर्स लोगे तो उसमें आपको बहुत सारे अराउंड 200 to 500 क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस मिलेंगे हर टॉपिक पे, ठीक है. सो दैट इज अ प्लस कि भाई आपने अभी एक टॉपिक पढ़ा, देन यू आर प्रैक्टिसिंग फ्यू क्वेश्चंस. पहले आपने इजी लेवल करे, देन मीडियम लेवल करे, देन डिफिकल्ट लेवल, हार्ड लेवल करे, है ना. एंड सेल्फ स्टडी में क्या होगा कि आप जब ये इजी मीडियम हार्ड कर रहे होगे ना, देन आपके कुछ डाउट्स आएंगे. देन उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आप किसके पास जाओगे? यू वुड आइदर रिलाई ऑन कम्युनिटी, राइट, या फिर आप खुद अपने दोस्तों के पास जाओगे. सो इट इज बेटर कि अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको टीचिंग असिस्टेंट्स का सपोर्ट मिलता है. सो यू कैन आस्क देम डायरेक्टली, उनसे भी आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, राइट. एंड प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर टू कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म. कोडिंग निंजास का कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो. वहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनी वाइज प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, आपको फ्री में मिलते हैं. वो कोड डेवलपर आपका आईडी भी होता है वहाँ पे. सो यू डू चेक इट आउट कोड स्टूडियो को, ठीक है. सो okay, so this is an interesting question. So Virender is asking if a person does not have a degree, can they get into a job at MAANG company? So basically, Virender, it basically totally depends upon कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है. सो कंपनी जब भी कोई जॉब लिस्ट आउट करती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि भाई द कैंडिडेट शुड बी पास्ड आउट ऑफ दिस ईयर, कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है. एंड इतना मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, ठीक है. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी. इवन सम स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स क्या करते हैं, दे डोंट आस्क फॉर डिग्री कि भाई आपका इट डजंट रियली मैटर अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो कि नहीं हो. दे ओनली वांट टू सी योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको कितना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, ठीक है. सो आई वुड से टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है. सो अगेन दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. रादर एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबके मन में आता है कि हाउ मच CGPA इज एसेंशियल रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. सो एक जनरल आइडिया जो होता है, जनरल आउटलुक टुवर्ड्स CGPA इन कॉलेजेस इज कि भाई 8.5 से ऊपर रख लो अपना एग्रीगेट. दैट इज सफिशिएंट, दैट इज गुड इनफ. But I would rather say कि भाई try to stretch the CGPA towards 9, क्योंकि आजकल जो अच्छी कंपनीज आ रही हैं, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो हैं ही, बट देर आर अ फ्यू अदर कंपनीज एज वेल. क्वांट की कंपनीज होती हैं, दे कीप इट they keep their criteria very high, 9.5 के करीब रखती हैं. So if it आपका अगर गोल वो है कि बहुत ही अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, क्वांट वाली क्वांट कंपनीज क्रैक करनी है, HFTs क्रैक करनी है, then you can stretch your goal of CGPA to 9.5. Otherwise 8.5 से ऊपर is a decent CGPA, don't worry about it, ठीक है. तो 8.5 से ऊपर रखने का ट्राई करना गाइस. CGPA उस पे जनरली कंपनीज होती हैं वो 8 शो करती हैं, बट दे शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स अबव 8.5, 8.6 लाइक दैट, ठीक है. सो ट्राई टू कीप मिनिमम 8.5 एज योर CGPA. Okay, so next is about competitive programming. Okay guys, so अब जैसे आप देख रहे हो जो हमने ग्राफ यहाँ पे फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है. So अगर आप देखोगे इसमें थर्ड मैंने पॉइंट लिखा है एप्लीकेशन का, ठीक है. DSA आपने सीख ली, आपको पता है DSA में टॉपिक्स क्या होते हैं, यू नो अबाउट द कंसेप्ट्स, एंड आपने प्रैक्टिस भी कर लिया उसको अच्छे से, सारे सारे कंसेप्ट्स को मास्टर कर लिया है, ठीक है. रेंजिंग फ्रॉम एरेज, BSTs, ग्राफ, सारे कंसेप्ट्स आपने मास्टर कर लिए हैं प्रैक्टिस कर करके. नाउ इट इज अबाउट एप्लीकेशन. अब हमने सीख लिया, हमने जान लिया, हमने उसको सबसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया. अब ये पता चले कि भाई दुनिया में ये चीज़ लगती कहाँ है, जो हमने सीखी है ये दुनिया में लगती कहाँ है ना. सो रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट कि DSA इज ऑल अबाउट डेटा मैनेजमेंट की. डेटा आप कैसे एफिशिएंटली खेल रहे हो डेटा के साथ, कि आप कैसे एल्गोरिथम्स लगा रहे हो सॉर्ट करने के लिए, या कुछ XYZ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कैसे लगा रहे हो, राइट. सो ठीक है. तो एप्लीकेशन में अब वही है कि अब या तो आप डेवलपमेंट साइड में निकल जाओ, ठीक है, DSA सीख के, या फिर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आ जाओ. ऑन वन हैंड डेवलपमेंट इज कि एक फ्रंट पे आप क्या काम कर रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन मिल जाएगा.
if you are applying your problem solving skills to solve that particular problem, जैसे machine learning हो गया, web development हो गया, app development हो गया, कि भाई एक प्रॉब्लम है, मेरे को दो लोगों को कनेक्ट करना है, ठीक है, थ्रू अ वीडियो कॉल, सो आई विल बी डेवलपिंग अ वीडियो चैट एप्लीकेशन, है ना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेब डेव स्लैश ऐप डेव, राइट, वेब डेव या फिर ऐप डेव का पार्ट है। एक प्रॉब्लम है कि भाई मेरे को इमेज रिकग्निशन का कोई सिस्टम बनाना है, दैट इज मशीन लर्निंग का पार्ट, ठीक है। एंड कमिंग ऑन टू सीपी नाउ, सीपी में क्या होता है आपका, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, आपने जो अभी बेसिक चीजें सीखी है ना, आप उसको बहुत ही एक्सटेंसिवली सीखते हो, कि आपको कम टाइम दिया रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आप बहुत ही रिच बनाते हो अपनी सीपी करके, कम टाइम दिया जाएगा, 4-5 क्वेश्चन होंगे, हमको उनको फटाफट सॉल्व करना है, एंड फटाफट सॉल्व करने है प्लस उनको करेक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो एक क्वेश्चन को 15 मिनट में करते थे ना, यू विल बी बाउंड टू थिंक उसको बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन सोचने के लिए, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आपका एक आउटलुक बन जाएगा प्रॉब्लम्स को देखते ही सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आफ्टर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यू कैन बेसिकली स्विच टू एनी अदर डेवलपमेंट पार्ट। इट मेक्स यू अ लिटिल मोर एजाइल, काफी आपको एजाइल बना देती है कि आप यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन टास्क टू अनदर वेरी क्विकली, यू कैन लर्न स्टफ, यू कैन अनलर्न स्टफ वेरी क्विकली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। Okay, so moving forward with another question. Okay, okay. So Serik is asking if I don't have a CS degree, should I learn front end or back end? Serik, it totally depends upon your interest, right? So in web development, फ्रंट एंड इज द पार्ट जो कि आपको क्लाइंट को दिख रहा होता है। कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो, बटन्स हो गए, कलर्स हो गई, थीम्स हो गए, ये सारी चीजें, कोई भी आप चीज से इंटरेक्ट करते हो ना, तो वो फ्रंट एंड का पार्ट है ना। बैक एंड का पार्ट होता है जो कि आपका डेटा से डील करता है, कि लॉग इन करा, ठीक है, तो यूजर का यूजर नेम जाएगा, पासवर्ड जाएगा, नाउ दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड, राइट, तो वो अपने डेटाबेस से वेरीफाई करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा, दैट इज बैक एंड का पार्ट। नाउ दिस having a CS degree or not having a CS degree, मैंने अभी बोला था कि भाई totally it is totally unrelated to आप क्या सीखना चाह रहे हो। You can learn coding without having a CS degree, ठीक है, you can learn web development without having a CS degree, so sure you can go forward and learn about front end and back end, and or basically front end or back end or even a full stack development based upon your interest. Okay. Okay. If you're an average student ready to hard work, how much time it will require if I give 6 hours for DS and 3 hours for web dev each day to complete it and ready enough to land a good job, land a good company? Okay. So, it totally depends upon कि आपका टाइम फ्रेम कितना है। सपोज अभी किसी ने पूछा था कि भाई उनका वो 3rd ईयर में है, 5th सेम है, एंड इफ ही वांट्स टू प्रिपेयर, इफ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर अगर वो इंटर्नशिप के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, सो उनके पास कुछ 30 डेज ही हैं लिमिटेड, है ना, तो तब आपको इतने टाइम डिवोट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपके पास अभी टाइम है तो इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न थिंग्स स्लोली एंड स्टेडीली रादर दैन एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ। आप फटाफट चीजों को याद करोगे, कोशिश करोगे समझने की, तो वो इतना मजे से नहीं आ पाएगा, इतना अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो इट इज बेटर कि आप उनको धीरे धीरे लेके जाओ। अगर आप 6 आवर्स भी देना चाह रहे हो लेट्स से डीएसए के लिए, एंड 3 आवर्स फॉर वेब डेव ईच डे, सो आई गेस 1 महीने में भी दिस इज गुड इनफ टू लैंड अ गुड कंपनी। एक डिसेंट कंपनी लैंड करने में बहुत ही दिस इज डिसेंट इनफ, तो यू विल बी एबल टू लैंड गुड कंपनी विद दिस, ठीक है। सो okay. So another question is that how much time is required to learn DSA for 3rd year? For placements, as a follow-up question, Syed has posted that for placements, he's asking for placements. So आप सीख सकते हो 3rd ईयर में होने के बावजूद भी, यू कैन लर्न DSA, एंड DSA में कुछ ऐसा नहीं है कि आप ओवरनाइट सीख जाओगे, आपको एटलीस्ट 1 महीना तो देना पड़ेगा कंसेप्ट सीखने के लिए, एंड देन 2 से 3 महीने प्रैक्टिस के लिए अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस वेरी क्विकली, जैसे मैंने अभी कहा था, बट वो वही होगा कि आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा चीजें, ठीक है। सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू लर्न DSA?
तो I would say you can very well prepare for placements in 2 to 3 months at max. अगर आप इससे और भी ज़्यादा जा सकते हो तो बेटर है, आपको और प्रैक्टिस मिलेगी, आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा. बट मिनिमम 2 से 3 महीने तो चाहिए, 1 month फॉर लर्निंग ऑल अबाउट द टॉपिक्स, एंड देन 2 महीने आपके जो होंगे 1 से 2 महीने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है. ओके, सो गाइज आई एम लविंग इट, बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है, ठीक है. सो ठीक है, आगे चलते हैं. हमने डीएसए देख लिया, ठीक है, कि लर्निंग का, प्रैक्टिस का, एप्लीकेशन का. डीएसए हमने देख लिया कि भाई व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. Now talking about core subjects. So the thing is कि companies, why do the companies ask about core subjects in interviews as well? So DSA क्या करता है? DSA हो गया, आपका CP हो गया. These things open the door of interviews for you. आपके लिए इंटरव्यू का दरवाजा खोल देते हैं by helping you clear the आपका कोडिंग राउंड जो होता है, ठीक है. After that it is all about कि आपकी skills क्या है, ठीक है. तो आपके इंटरव्यूज में आपसे आपकी स्किल्स पूछी जाएंगी, आपके रिज्यूमे के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर कोर सब्जेक्ट्स जो आपने कॉलेज में पढ़े, ठीक है. So these, why do the companies ask about core subject? So core subjects के बारे में वो इसलिए पूछती हैं कि उनको ये देखना है कि how serious you are in your studies, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डीएसए कर रहे हो, स्टडीज में आपका कोई ध्यान नहीं है. सो दे डोंट वांट दैट टू, ठीक है. उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई दे वांट कि भाई आपको ये पता हो कि अगर आप कोई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे काम कर रहे हो, कोई ऐसा एप्लीकेशन है दैट इज डीलिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो उनको ये चाहिए कि भाई हमारे जो कैंडिडेट है उसको एक बेस पता हो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, ठीक है. सो जनरली कंपनीज आस्क अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऊप्स दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स, राइट, एंड सिस्टम डिजाइन. कंपनी सिस्टम डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती हैं. सो यू शुड प्रिपेयर दीज सब्जेक्ट्स वेरी वेल, ठीक है. अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना if you are if you want to crack a good placement, ठीक है. ठीक है. So moving on to the questions now. So Hari is asking, what are the topics required for DSA so that we learn theory as well as practical. I'm working in MSc and how to manage it. Okay, so Hari, since you are working right now, so topics required for DSA. अगर आपको अभी ऐसा क्लियर नहीं है ना कि टॉपिक्स क्या लेने हैं, ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक कोर्स ले लो, ठीक है. टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं यार. टॉपिक्स रेंज फ्रॉम द वेरी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इज एरेज, ठीक है, डेटा वेरिएबल्स आपके होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, एंड देन उसके बाद आपके आते हैं एरेज, ठीक है. फिर उसके बाद आपके पास आते हैं बहुत सारे स्ट्रिंग्स और आती हैं. फिर उसके बाद नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, आपके बीएसटी आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके पास लिंक लिस्ट भी आते हैं, स्टैक्स, क्यूज भी आते हैं, ठीक है. सो देयर आर वेरियस टॉपिक्स, ठीक है. एंड उसके बाद एल्गोरिथम्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. सो इट इज ऑलवेज अ गुड कि अब अगर आप एक कोर्स ले लो, सिंस यू आर वर्किंग एज वेल, तो आपको टाइम भी मैनेज करना होगा. सो इट इज गुड कि आप कोर्स ले लो रादर देन गोइंग फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है. सो कोर्स से आपको क्या होगा, आपको एक जगह पे स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिल जाएगा एंड आपको टाइम भी डिवोट करने का आपके पास रहेगा कि भाई आई हैव टू पुट आउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स फॉर दिस कोर्स दैट आई हैव टेकन. उससे आपको पढ़ाई और प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है. Okay, so Said, if you would specify for किस लिए पूछ रहे हो, how much hours daily basis, ठीक है. Okay. Okay, Rahul. So Rahul has asked this question, that how a non-tech background student can make software engineering job. Okay, so it totally depends. आपका background कहाँ matter करता है ना. देखो, आप you can learn data structures and algorithms irrespective of your degree or background, ठीक है. There are people that I know who are from environments degree या फिर ऐसे electronics की degree से होते हैं, ठीक है, B.Tech में, and they have secured a good placement in companies like Expedia हो गया, आपका Microsoft हो गया even at Google, ठीक है. So companies क्या करती हैं, they only majorly the companies look for is problem solving skills.
एट द एंड ऑफ द डे उनको ये नहीं मैटर करता कि आपने 4 साल क्या पढ़ा है, कि आपकी डिग्री क्या थी। व्हाट मैटर्स टू देम इज़ कि भाई आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपको अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे रियली वांट देयर थिंग्स, देयर सिस्टम्स टू बी एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट बनाने के लिए क्या होता है, आपको एल्गोरिथम्स अच्छे यूज करने होते हैं, आपका लॉजिक सॉलिड होना चाहिए। सो फॉर दैट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, सो इट बेसिकली नैरोज डाउन टू कंपनी पे आ जाता है कि अब यार कंपनी ने बेस रिक्वायरमेंट क्या रखी है एक कैंडिडेट के लिए। अगर उन्होंने रखा है कि भाई एनी दे आर ओपन टू एनी एंड एवरी डिग्री, बीटेक डिग्री टाइप। So easily a non-tech guy, a non-tech person, a student from non-tech background can also make it into a software engineering job. अगर उनके पास अच्छा वो है लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, so I hope this answers your question. Okay. So for DSA, how much hours needed to spend daily for a duration of 4-5 months? So 4-5 months के लिए यार आपको 2 से 3 घंटे एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 से 3 घंटे कैसे कि भाई 2 घंटे में से आपने 1 से आधा घंटा, आधे से 1 घंटा आपने लर्निंग के लिए रख लिया, कोई नया टॉपिक सीखा, एंड देन उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपने रखा है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज इवेंचुअली आपको वही करना है। ग्रैब द कंसेप्ट्स क्विकली, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इजीली। ठीक है, दैट इज व्हाट आई थिंक. Okay, so this is a nice question by Deep, that how to apply in MAANG directly, basically where I will apply. So what happens is दो scenarios होते हैं कि either the companies would come onto your campus directly, ठीक है, that is called on campus placement. And दूसरा scenario होता है that आप companies के careers page पे जाके, suppose there is this page of Microsoft even, कि careers.microsoft.com, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि या तो कंपनी जब ऑन कैंपस आ रही हैं तब आप उन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दैट प्रोसीजर वुड बी आपकी TNP सेल जो होगा दैट वुड नोटिफाई कि भाई द सो एंड सो कंपनी हैज अराइव्ड ऑन कैंपस फॉर प्लेसमेंट। एंड उसमें सिनेरियो ये रहता है कि देयर आर सेवरल राउंड्स, कोडिंग राउंड होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, एंड देन उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सॉरी नाउ कम्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। सो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जैसे मैंने कहा कैरियर साइट्स होती हैं। ठीक है, careers.microsoft या careers.google.com करके आप किसी भी साइट पे जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर जाओ, एंड देन वहाँ पे लिस्ट ऑफ ओपनिंग्स आ रहा थी कि द कंपनी इज हायरिंग फॉर दिस सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए या फिर किसी और एक्सेट्रा रोल के लिए हायर कर रही है। So you can apply there directly. You just have to upload your resume, and in a matter of days, you would hear back from the recruiter, or you can even apply on LinkedIn. कि अगर LinkedIn पे आप recruiters को approach कर सकते हो, you can ask for referrals in on off campus, in off campus method कि आप referrals मांग लो LinkedIn में जाके अपने seniors से या फिर from the people that you know are working in that company. ठीक है, so this is how you can generally apply in any company. ठीक है, so moving on. So this is also a good question, right? How should I manage a DSA with college studies? So mostly I guess ये सबका ही क्वेश्चन होता है कि how they can manage DSA with college studies, क्योंकि अब जब कॉलेज सबके ऑफलाइन हो गए हैं मोस्टली। सो ये क्वेश्चन रहता है कि DSA भी पढ़नी है, प्लेसमेंट्स की भी तैयारी करनी है, एंड ऑल्सो कॉलेज की भी तैयारी करनी है। सो हाउ वी कैन डू दैट। सो गाइज इस पे मैंने एक शायद वीडियो भी बनाई है, आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, कोडिंग निंजास की, कि हाउ टू मैनेज योर टाइम बिटवीन DSA एंड स्टडीज। सो बेसिक मोटिव, मतलब बेसिक आइडिया यही होता है टू मैनेज DSA बिटवीन DSA एंड कॉलेज स्टडीज, कि आप ना एक दिन पहले, जैसे कल का आपका दिन है, यू जस्ट प्लान योर डे अहेड। ठीक है, कि भाई कल मेरे को कॉलेज में इतने से इतने होना है, सपोज 9 to 3 मेरा कॉलेज है। ठीक है, एंड देन उसके बाद मेरे को 1 घंटा लगेगा घर वापस आने में। सो आफ्टर 4 आई विल टेक हाफ एन आवर का रेस्ट लूंगा, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मैं DSA पढ़ लूंगा। बिकॉज DSA इसलिए एकदम पढ़ना कि यार जब आपका फ्रेश माइंड हो ना, DSA तब पढ़ो, बिकॉज आपको कुछ सीखना है। ठीक है, आपको कुछ थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए याद रखना है। कॉलेज स्टडीज तब भी आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में पेपर देके आप निपटा दोगे। ठीक है, सो DSA को आप फ्रेश माइंड से करना कॉलेज से आने के बाद,
ठीक है, यू कैन गिव अ कपल ऑफ आवर्स टू डीएसए, 2 घंटा दे दो डीएसए को, देन थोड़ा थोड़ा आप क्लास में भी ध्यान दो, नोट्स बना लो कॉलेज स्टडीज में, ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बना लो, बिकॉज प्रोफेसर जनरली नोट्स में से ही पूछते हैं, अपने नोट्स जो देते हैं उसमें से ही पेपर में आता है. सो दैट इज हाउ यू कैन थोड़ा सा लिटिल थोड़ा सा लिटिल एफर्ट डाल के क्लास में जब नोट्स बना लोगे, अब वो घर में आके बस वो रिवाइज ही करने होंगे नोट्स, या फिर एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको सर्च करना होगा, तो कॉलेज स्टडीज इतना आपको हैवी नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू डीएसए. सो आप मेजर टाइम जो है अपने डीएसए को दे पाओगे, कॉलेज स्टडीज को फिर आप थोड़ा सा कम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है. सो another question, let's take up another question. Okay. Okay. So is 6 months enough to crack Amazon? Specifically explain how and how much time should I code on daily basis, how many full stack and how many mini projects would be enough. Okay, so Abhishek, देखो डायरेक्टली तो मैं ऐसे कोई पिन नहीं कर सकता कि इतना टाइम काफी है, ठीक है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी तैयारी कैसी है. 6 मंथ्स में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है इफ यू आर टॉकिंग इन सेंस ऑफ डीएसए, ठीक है. सो डीएसए के हिसाब से आप अमेजोन के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो 6 महीनों में, ठीक है. एंड हाउ का ये रहेगा कि भाई अगेन स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स ऑफ डीएसए. थोड़ा आप दिन में 2-3 घंटे निकालो, 3 से 4 घंटे निकालो, बेस्ड अपॉन योर टाइम आपका कितना चल रहा है आपके पास, ठीक है. तो उसमें आप मिनिमम मतलब थोड़ा सा कम पार्ट 25% आप टाइम उसमें से आप डिवोट करो टुवर्ड्स लर्निंग न्यू थिंग इन डीएसए, एंड देन 75% दो आप प्रैक्टिसिंग को, ठीक है. तो उससे आपका क्या होएगा, यू लर्न समथिंग, ठीक है. लर्निंग का इतना नहीं होता पार्ट आपके प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली कोरिलेशन में, जितना आपका प्रैक्टिस का रहता है, ठीक है. तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, 500 से 1000 प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि आप यू गेट वेरी रोबस्ट. एंड ऐसा कोई नहीं है कि यार 1000 प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे शौर्य ने बोल दिया तो 1000 प्रॉब्लम्स करनी, नहीं नहीं. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितने में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है. इजी प्रॉब्लम्स आपने 100 करी, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ भाई इजी प्रॉब्लम्स एरे की मैं निपटा दूंगा अगर मेरे को कोई भी मिल गई तो, ठीक है. देन उसके बाद एक बार आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, देन मूव टू मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स. मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स करी आपने एरे की, ठीक है. देन उसके बाद आपने देखा कि हाँ भाई आई कैन टेक अप एनी इजी मीडियम प्रॉब्लम, एंड थोड़ी सी मीडियम से भी टफ आएगी तो वो भी देख लूंगा, ठीक है. देन उसके बाद जाओ हार्ड लेवल प्रॉब्लम पे. सो दिस इज हाउ यू कैन practice for Amazon if you have such a good amount of time. And how much time should I code on daily basis? So it totally depends, आपके पास कितना टाइम है, जितना दे सकते हो उतना अच्छा है यार. And also how many full stack and how many mini projects would be enough. So though generally it is said in your resume, right, कि दो projects रखो which show your interest, ठीक है. So 2 projects रखना are enough यार. Projects are just for कि interviews में उसके regarding you can showcase that आपने जो problem solving skills सीखी हैं या फिर कोई skill सीखी है, how good is that, ठीक है. So it is only about that project. तो दो अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स रखना रेज्यूमे में, ठीक है. ऐसा कुछ नहीं है कि कितने प्रोजेक्ट करूं, एक्स नंबर, वाई नंबर, जी नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ओके, सो any specific process to do DSA while working? So Sudarshan, there is no specific process to do DSA while learning, ठीक है. अभी भी just like I explained right now, it totally depends upon what time do you have, right? If you if you have spare time of 2 to 3 hours, then I would say that you can take up 1 to 1.5 hours for DSA, and then you can take a rest between for half an hour. So in that 1 to 1.5 hour, what you can do is you can learn a new concept in half an hour and then practice for the rest of the time related to DSA. So that जैसा मैंने कहा था कि भाई there is a major proportion of what how many problems you have practiced, how good you are in problem solving, rather than in कि BST में ऐसे नोट स्टोर होती हैं, एरेज में ऐसे डेटा स्टोर होता है, वो तो पता ही होना चाहिए. बट डोंट गो इनटू मच डेप्थ ऑफ दैट कि भाई मेमोरी लेवल में ऐसा हो रहा है, रजिस्टर्स में ऐसा जा रहा है डेटा, ऐसा डोंट गो इनटू मच डेप्थ ऑफ दैट, ठीक है. So there is no specific process, but it would be helpful for you if you take up any course so that you can move in a structured manner. Okay.
Now someone is asking that they have done a few questions, like 200 questions, right, from a site, and after that they want to start development in parallel with DSA. So sure, you can do that. आप एक बार ही आपने कुछ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, लाइक 200 टू 300 400 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप डीएसए की प्रॉब्लम्स अच्छे से अब मीडियम लेवल राइट सॉल्व कर पाओगे, सो दो उसके बाद आप यू कैन इजीली गो फॉर वेब डेवलपमेंट और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट यू आर होपिंग फॉर. ठीक है, ओके. So, okay. So moving on with this flow chart. So एक बारी आपने डीएसए कर लिया, ठीक है, आपने कोर सब्जेक्ट्स अपने मैनेज कर लिए, वो देख लिए कोर सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं. Then it is about interview preparation. अब आपने जो सीखा है, you'll be asked that in interview. So interview preparation में आप क्या कर सकते हो? If you're targeting a specific company, like someone was in the chat was targeting Amazon. So अब उसमें क्या कर सकते हैं? You can definitely practice in those last few days when the company arrives on campus. You can definitely practice the specific interview questions. Suppose Amazon आ रही है, so Amazon मेरे को पता चलेगा कि आज आ गई है एंड एक हफ्ते बाद उसका कोडिंग राउंड होने वाला है. So what I'll do is कि भाई Amazon के लिए जो जितने भी Amazon related problems है ना, कि भाई ये Amazon में आया था, this problem was there in Amazon, so मैं वो सारे प्रॉब्लम स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, वो सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि मेरे को एक आइडिया मिल जाए, एक मैं माइंडसेट में आ रहा हूँ कि भाई हाँ, Amazon तो ऐसे क्वेश्चन पूछती है, सो आई शुड एक्सपेक्ट दैट कि कोडिंग राउंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, सो इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करना रिलेटेड टू अ कंपनी. 50 और सो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे एक हफ्ता पहले, दैट इज क्वाइट गुड, क्वाइट इनफ. ठीक है, नेक्स्ट कम्स HR राउंड. HR राउंड यार, एनी कंपनी दैट इज हायरिंग वो ये देखना चाहेगी कि भाई ठीक है, देयर आर फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट इज कि भाई कैंडिडेट को डीएस से आता है कि नहीं आता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है. प्रॉब्लम सॉल्विंग देख ली. अब ये देखना चाहेंगे हाउ सीरियस द कैंडिडेट वाज इन देयर स्टडीज. ठीक है, तो वो देख लिया कोर सब्जेक्ट से. अब लास्ट में वो ये देखना चाहेंगे कि भाई इज द कैंडिडेट अ गुड फिट फॉर द कंपनी. सो वो देखते हैं HR राउंड से कि भाई कैंडिडेट का थिंकिंग प्रोसेस कैसा है. ठीक है, हाउ गुड दे आर इन वर्किंग इन अ टीम. ठीक है, तो ये सारी जितनी भी ऐसी चीजें होती है, नॉन टेक्निकल चीजें, दे कीप इन द HR राउंड. सो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जस्ट डिस्क्राइब व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी, कि आप क्यों काम करना चाहते हो, एंड सच क्वेश्चंस पूछ लेंगे. बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं. व्हाट यू कैन डू इज अ रियली अ गुड टिप फॉर दिस इज कि भाई क्वेश्चंस देख लो, बहुत सारे आंसर्स पढ़ लो, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ लो, देन उसके बाद खुद अपना ना कुछ यूनिक सा आंसर बनाने की कोशिश करो. बिकॉज 5-10 बच्चे जाएंगे इंटरव्यूज में, HR राउंड में, वो 5-10 बच्चे ना, वो उन 5-10 बच्चों में से 8 से 4 बंदे ना वो सेम रटा रटाया एक आंसर देते हैं जो कि स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है. अब कुछ अलग दोगे ना, तो HR जो होंगे वहां पे इंटरव्यूअर, उनको याद रह जाएगा कि यार ये कैंडिडेट ने अच्छा बोला था, कुछ अलग बोला था. सो डू दैट. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चंस. ओके, okay, so Deep, it again, Deep has asked this question, that is it required to have any previous experience before joining MAANG? So it is not really required, right? Fresher level ke liye, they do not expect any fresher to have 4 years of experience. Koi company aisa nahi karti. So if you're passing out this year or next year, you can easily apply for the fresher roles, that is SD1 roles in any of the MAANG companies. ठीक है, इट श्योरली डिपेंड्स अपॉन आपका जॉब प्रोफाइल क्या है आगे जाके. सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर SDE2, सो देयर इज 2 to 3, ऐसा वो रखते हैं कि भाई 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम है. एंड इट ऑल्सो ऐसे ही इट वेरीज विद द जॉब प्रोफाइल गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, सो Abhishek is asking, if I make a single project on every new tech,
then it would be many projects. Right, Abhishek, बहुत सारे projects हो रहेंगे, but you know how would you be able to learn so many topics like web development सीख पाओगे, app development सीख पाओगे? Limited time है, just go on and explore आपका वो क्या है, आपका interest किस में है ज़्यादा inclined, then उस पे आप अच्छे से काम करो rather than knowing all the topics that there are. एक अच्छा टॉपिक पकड़ो एंड उस पे अच्छे से काम करो ताकि आप उसमें स्पेसिफिकली अच्छे से स्किल्ड हो जाओ, ठीक है? So okay, so Gopal is asking, is coding ninjas question sufficient for FANG? So I would say coding ninjas के questions sufficient है FANG के लिए. Not only the course you know course questions, course में तो बहुत सारे questions हैं, आपको मिल जाते हैं, ठीक है? Apart from that you can visit the Code Studio platform by Coding Ninjas, ठीक है? वहाँ पे आपको बहुत सारे questions मिल जाएंगे company wise. आप you know you can practice questions there. You can even you know practice questions जो कि आपको you know even if you can टॉपिक वाइज भी ले जा सकते हो, डिफिकल्टी वाइज भी ले जा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सपोज आपको वहाँ पे ऑनलाइन कोड एडिटर भी मिल जाता है. सो you should visit a Code Studio platform after this session. You can find the link in the description and in the pinned comment as well. So do remember to check that out, ठीक है? Okay. So Deep, this totally depends upon, as I said, कंपनी का कोर्स यू नो कंपनी का जॉब क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी हुई है. सो इट इज़ नॉट अबाउट योर डिग्री, इट इज़ अबाउट द कंपनीज रिक्वायरमेंट, उन्होंने क्या पूछा हुआ है, राइट? सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट. Okay. So guys, this is you know how you can become a software engineer, ठीक है? This is in a very brief manner. मैंने इसमें अभी काफी depth में नहीं गया हूँ because this is an AMA session and not a discussion over how you can become a software engineer, ठीक है? So majorly 3 things you have to master. First is DSA, second is core subjects, and then third is you know a little of interview preparation, ठीक है? So okay. So let's take up another question. Okay. Okay. So ठीक है, ठीक है. Gopal, this again, you know, backlog criteria, this again, you know, these are very, you know, specific things जो कि कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है. इसमें कॉलेज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है जनरली, जितना मेरे को पता है. इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन कंपनी का क्या क्राइटेरिया है हायरिंग का, ठीक है? समटाइम्स देयर आर कंपनीज दैट अलाउ you know backlog clear कर लिया है, then they allow students to come up for hiring, and otherwise there are a few companies that don't allow that. So जितना मेरे को पता है, it totally depends upon company का क्या criteria है rather than you know college अगर रोक रहा है. It doesn't work that way, ठीक है? Okay. So there are a few questions around you know CP platform, कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है. So regarding that, let me tell you that there's this platform called Code Studio by Coding Ninjas. वहाँ पे बहुत सारे competitions होते रहते हैं, coding competitions. So you can check that out. This is definitely you know this is definitely a good platform to start with competitive programming and you know even continue with that. So Code Studio को check out करना. आजकल में वो बहुत अच्छा चल रहा है Code Studio. So do check it out. ठीक है? Okay. So let's take up another question. Last 5-6 questions ले लेते हैं, ठीक है? कुछ specific questions अगर आपके पास हैं कि about how to prepare for a company or you know how to learn a particular topic, या फिर मेरे को practice कैसे करनी चाहिए questions की, please ask that. Please feel free to ask that. So generally जैसे question अभी किसी ने पूछा था, generally लोगों का criteria रहता है कि भाई हम प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं आफ्टर लर्निंग, बट वी डू नॉट नो हाउ टू प्रैक्टिस, ठीक है? हमसे इजी लेवल प्रॉब्लम हो जाती है, मीडियम हो जाती है, डिफिकल्ट हार्ड वाली में डिफिकल्टी आती है. सो गाइज उसके लिए क्या करो ना, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू शुड नो हाउ टू टेक अप, कब आपको व्हेन यू हैव टू टेक अप अ पर्टिकुलर डिफिकल्टी. सो सपोज मैंने आज RS या लिंक लिस्ट सीखा, ठीक है? तो आज लिंक लिस्ट में सीखने के बाद अब क्या करूंगा, उसकी ईजी से थोड़ा सा ईजी से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा मीडियम और इजी वाले के बीच में सॉल्व करूंगा, ठीक है?
ताकि मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इजी प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर करती हैं, ठीक है। एक बारी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, देन यू कैन गो ऑन टू मीडियम प्रॉब्लम्स। मीडियम प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, आपका थोड़ा सा कंसेप्ट वाइड करती हैं, एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट, दे वाइडन योर होराइजन, कि आपने ये सीख लिया कि भाई a प्लस 2 + 2 4 होता है। अब वो ये पूछेंगे भाई आपके 2 × 2 × 2 क्या होता है। वो थोड़ा सा होराइजन आपका वाइड करती है, आपका सोचने का तरीका बढ़ाती है मीडियम प्रॉब्लम्स। उसके बाद आती है हार्ड प्रॉब्लम। हार्ड ऐसा होती है कि बिल्कुल ही वो आपको टेस्ट करती हैं कि आपने कंसेप्ट सीख लिया, आपने अपना थिंकिंग ब्रॉड कर ली, अब आप बताओ क्या आप इसको इतने डिफिकल्टी लेवल पे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। So first, practice a few questions for a few days unless आपके concepts clear नहीं होते, easy problem solve करो। एक बारी concepts clear हो गए, अच्छे से दिमाग में बैठ गए, then go for medium problems, and then जब आपको लग रहा है कि भाई medium की मैं कोई भी फोड़ दूंगा problem, then go for hard level problems, ठीक है। So Gopal has asked, how can I get an internship if I'm in 5th sem currently? So again, Gopal, I guess I have answered this. ठीक है कि आप पहले तो there are companies coming onto your campus, so that is on campus placement. तो आपका TNP cell, that is training and placement cell, वो आपको बताएगा about companies coming for internships. And then there is off campus method, जिसमें कि आप LinkedIn के थ्रू, कैरियर्स वेबसाइट के थ्रू, जो कि वेबसाइट आपके मतलब अवेलेबल होती है आपको पब्लिकली, आप उस पर जाके चेकआउट करते हो इफ अ कंपनी हैज पुट अप एन इंटर्नशिप जॉब रिक्वायरमेंट और नॉट, देन आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। So this is a good question. So how to motivate consistently for a longer time? So इसका जनरल आंसर मैं देता हूँ काफी, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सी योर सेल्फ एट कि भाई आपका गोल ये है, इफ यू वांट आपका गोल है कि टू गेट अ जॉब एट सो एंड सो कंपनी, सो जस्ट एवरी डे जस्ट लुक फॉर योर सेल्फ कि अगर आपको वहां जाना है, दैट इज हाउ यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ कि भाई माई गोल इज टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सो एंड सो कंपनी, सो जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर आपको वो याद है ना कि भाई व्हाट इज योर एंड गोल, सो यू वुड नेवर फील डीमोटिवेटेड, या फिर आप प्रोकार्सिनेट नहीं करोगे किसी चीज को कि भाई आज नहीं करना मैं, या फिर अब नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू डू दिस। You will always be motivated for that good that good position that you want in that company, ठीक है। Now next question is how to build logic. So Mohammed Mehraj, basically your logic building is it comes with the number of problems that you solve. कंसेप्ट अच्छे से समझो, ठीक है, कंसेप्ट में आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, थ्योरी अच्छे से समझो, देन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड इट। मैंने जैसे अभी समझाया मीडियम, इजी एंड हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, वैसे करो, देन इजीली आपका लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होएगा। Okay, so Pratik is asking, sir, I'm in first year right now. Which language should I learn, C++ or Java or JavaScript? So C++ can be a good start for DSA. ठीक है, DSA सीखने के लिए C++ काफी अच्छा start हो सकता है. You can go for Java as well, but usually C++ is widely acceptable. तो कंपनीज अगर टेस्ट लेती हैं तो कई बार ऐसा होता है, दे आर वेरी लैंग्वेज स्पेसिफिक, ठीक है, कोई ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे लेती हैं ऑनलाइन जो कि लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। So it is always safer to learn in C++ because that is widely accepted. Okay. So Gopal, for internship के लिए ऐसे कोई DSA आपको मेजरली अच्छा आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्किल होती है जैसे वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग या ऐप डेवलपमेंट सीखी है, दैट इज ऑलवेज अ प्लस इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो DSA तो आपको अच्छा आना चाहिए, नो डाउट। एप्लीकेशन में अगर आपने डेवलपमेंट सीख रखी है थोड़ा बहुत, दैट इज ऑल्सो प्लस। इवन इफ यू आर इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, दैट इज ऑल्सो प्लस। बेसिकली कोई, जैसे हम फ्लो चार्ट में देख रहे हैं ना, एक एप्लीकेशन में से कोई सा एक आपको वो पार्ट आता हो डेवलपमेंट या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, दैट इज अ प्लस बट नॉट नेसेसरी। ओके ओके, सो लास्ट कपल ऑफ मिनट्स थोड़े और क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, देन वील वाइंड अप दिस सेशन, ठीक है। सो गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू राइट इट आउट इन द चैट, ठीक है। Okay, so this is a nice question.
कि considering the advancement in AI, should I continue web development or shift to AI? So tell me one thing, कि अगर AI आता है, suppose there is this AI called face recognition system, and face recognition system जो है, अगर हम लोग को उसको वीडियो चैट्स में इम्प्लीमेंट करना है, देन टेल मी कि क्या उसमें वेब डेवलपमेंट का काम है या नहीं है. सो वेब डेवलपमेंट का काम है ना, राइट? So there are things कि there are a few things की जो AI स्पेसिफिक हैं, there are a few things जो कि वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक हैं, एंड दोनों ही चीज़ें कम नहीं होने वाली. देयर is a rising and increasing requirement for websites as well, web development में, ठीक है? And with metaverse and all these things coming up, web development भी आगे grow करेगी. And you can go into AI as well, ठीक है? अगर आपका मन है AI सीखने का, you can go to AI as well. But these both of them are rapidly growing, and दोनों के ही I would say similar, in my opinion, similar growth rate है. काम की इनमें दोनों में कमी नहीं है. It now totally boils down to, it totally depends upon कि आपका इंटरेस्ट क्या है. अगर आप AI सीखने में इंटरेस्टेड हो, so go for AI. If you are interested in learning web development, then go in web development. No hard bound rules. Okay. ओके, सो ये प्रॉब्लम आई गेस सभी ने फेस करी है इनिशियली वाइल सॉल्विंग DSA. सो DSA की वीडियोस देख के लगता है कि कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर क्वेश्चंस नहीं होते बाद में. हाउ टू डील विद दिस? सो वेरी इजीली हाउ टू डील विद दिस इज कि भाई इजी लेवल प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, डोंट वरी अबाउट कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. जस्ट रिमेंबर दैट टाइम कि जब आपने मैथ सीखी थी फर्स्ट सेकंड में, देन आपको तब आपसे 1+1 भी नहीं होता था, 2+2 भी आपको नहीं आता था, 2+3 भी नहीं आता था. अभी सोच के सिली लगता है कि भाई 1+1 नहीं आता, 2+2 नहीं आता, 3+3 नहीं आता. बट दिस इज समथिंग जो कि वेरी सिमिलर है वाइल लर्निंग अ न्यू सब्जेक्ट. आप कोई नया सब्जेक्ट सीखते हो, आपको टाइम लगता है थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को सीखने में. एकदम सीख के आप एकदम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को एकदम मैंने लिंक लिस्ट सीख लिया, अब मैं एकदम से कोई ना कोई इसका हार्ड लेवल प्रॉब्लम फोड़ दूंगा या फिर इजी लेवल प्रॉब्लम भी एकदम फोड़ दूंगा. ऐसा नहीं होता है. आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. इसको रियलाइज करो कि दिस इज ऑल्सो न्यू थिंग फॉर यू. आप ऐसा है कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो एक तरीके से, और आप कुछ नया सीख रहे हो. So, थोड़ा टाइम दो, कोई टेंशन की बात नहीं है. अगर एकदम से नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि नहीं आता है, अगर ऐसे लग रहा है कि नहीं आता है, नोट्स को रेफर कर लो, वापस वीडियोस को रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो. बट जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, उसको बस ये मत करना कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आंसर देख लेता हूँ और सबमिट करके छोड़ दिया. नहीं, आंसर देखा, आंसर को भी कैसे देखो, एक पार्ट देखा, अच्छा, फिर उसके आगे डेवलप करने की कोशिश करो खुद से. जैसे साइकिल चलाते हुए क्या करते थे ना, पीछे से कोई आपको धक्का देता था, ठीक है, फिर उसके बाद फिर छोड़ देता था, बीच में आप खुद साइकिल चलाते थे, तो आपने उस दौरान आपने खुद साइकिल चलानी सीखी. फिर अगर आपको लगता था कि नहीं नहीं साइकिल मेरी डिसबैलेंस हो रही है, फिर कोई पकड़ लेता था पीछे से, फिर आपको फिर आगे धक्का खुद के लेता था, फिर आप उस पीरियड में साइकिल चलानी सीखते थे. तो वैसे ही है, आंसर देख रहे हो, कुछ पार्ट देखो, हिंट मिल गई, ठीक है, उससे आप खुद आगे सोल्यूशन डेवलप करना देखो. वहां कहीं अगर अटक गए, फिर आंसर देख लो कि अच्छा यहाँ तक मैंने ठीक करा, फिर यहाँ से मैंने ऐसा करा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और करो. सो इससे आपकी थोड़ी थोड़ी करके आप आंसर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना अच्छे से शुरू कर पाओगे, ठीक है? आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Okay. Okay. So this is a follow-up question on that AI one. That AI is even capable of programming. I have that fear. AI will replace web development. ठीक है. So there are a few certain things जो AI नहीं कर सकता. AI, although may be very good with programming and all of that stuff, but we cannot entirely rely on AI. अगर AI बना भी देता है, अगर मैं कहूँ कि going down the lane 10 years AI इतना strong हो भी जाता है कि वो websites बनाने लगे खुद से, but we would always need a web designer. ठीक है, web designer जी होगा. web designers की job कौन आ रहेगा? web developers आ रहेंगे, ठीक है? And also आपको ये वेरीफाई तो करना ही होगा ना कि जो AI ने बनाई है दैट इज अ रोबस्ट वेबसाइट और नॉट, कि क्या इस लिंक को क्लिक करने से एक्चुअली लिंक खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, ठीक है? सो दैट उसकी जॉब कौन करेगा? दैट इज अगेन अ वेब डेवलपर, ठीक है? सो AI कैन बी a supporting tool for web development, but it cannot in my opinion ever replace web developers, because हमें आप चाहे डायबिटिक रेटिनोपैथी ले लो या फिर कोई सा भी मेडिकल फील्ड में भी आप AI का एप्लीकेशन ले लो, देयर ऑल्सो यू वुड सी दैट
in such critical scenarios also, AI is always a second opinion and not the first or the foremost opinion that has that is taken into consideration. Okay, I hope that answers your question. Okay, so just last couple of just last 5 minutes. So how to prepare for core subjects without putting excess of time? So without putting excess of time, आप core subjects के लिए मैंने ऐसे ही कहा था कि यार you can when you are attending classes, तो क्लासेस में अटेंडेंस के लिए तो जाते ही हो, तो नोट्स भी बना लो साथ साथ में थोड़ा सा आपका वहाँ टाइम बच जाएगा, देन उन नोट्स को आके घर पे रेफर कर लो एंड उन नोट्स में से आप एक्सपैंड कर लो कि अच्छा ये इतना समझा दिया, बाकी मैं खुद सर्च करके कर लेता हूँ. सो आपका 80% टाइम वहीं बच गया. ठीक है, सो इट इज जस्ट द 20% ऑफ एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इन नाउ. सो आप ऐसे टाइम बचा सकते हो अपना. ओके, सो गौरव, आई थिंक आई आंसर्ड दिस कि एक बार अगर आपने अच्छे से डीएसए कर लिया है ना, सो अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज जनरली नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट इज ऑलवेज गुड कि आप कुछ प्रोजेक्ट कर लो. वो ये दिखाता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख ली है एंड आपने उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी अप्लाई करा है. ठीक है, सो अच्छा रहेगा अगर आप प्रोजेक्ट दिखा सको कोई अपने रिज्यूमे में. सो इट वुड ऑलवेज बी अ प्लस. ठीक है, सो गोपाल CGPH होती है, वो एग्रीगेट देखी जाती है. ठीक है, सो गाइस आई थिंक वी कैन टेक ओनली वन मोर क्वेश्चन नाउ. सो एक अच्छा सा क्वेश्चन कोई अगर पूछना चाहे तो देन वी सम दिस सेशन अप. ठीक है, सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिगार्डिंग इवन इफ दिस डाउट इज रिलेटेड टू दिस फ्लो चार्ट कि हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो उसमें भी पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं. Okay, so this is a nice question, right? To end this session, this is a good question. How much questions, how much question is needed to be fully prepared for a particular topic like IELTS or string? So topic-wise, अगर आप पूछो, so in my opinion, it varies from topic to topic as well. Like कुछ topics होते हैं जिनमें questions ही बहुत कम होते हैं, या फिर topics में कुछ समझने का ही बहुत कम होता है. Like stacks and queues हैं. स्टैक्स एंड क्यूज में आपको एक तरीके के एक तरीके के अप्रोच के, एक तरीके के सोल्यूशन के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, 100-200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट उनको प्रैक्टिस करने का इतना फायदा नहीं है. वंस यू हैव सीन कि भाई ये क्वेश्चन भी सिमिलर सा एप्लीकेशन है, देन इसको स्किप करके दूसरे एप्लीकेशन पे पढ़ो. सो coming on to the question, how much question is needed to fully prepare for a particular topic like string or array? So I would say generally, easy level questions में you can do 20 to 50 questions easy level. ठीक है, and in medium level questions do practice around 100 questions. ठीक है, for even a particular topic. And then again hard पे अगर मैं जाऊँ, hard पे again 20 to 50 is sufficient enough. बहुत है 20 to 50 hard questions अगर आपने कर लिए, that is a lot. ठीक है, आप उसके बाद कोई भी अच्छा क्वेश्चन छोड़ सकते हो particular to a topic. ठीक है, so guys, I guess with this question we'll wind this session up. So guys, if you have any other question, I would love to take that in the live chat or in the comments of this live session when it is posted on the Coding Ninjas website. ठीक है, I tried my best to answer all your questions. ठीक है, and I tried my best कि आपकी satisfaction के to help you out with all the questions that you guys had. And it was fun and lovely to interact with all of you today. So again, I hope कि आपके सबके questions मैंने answer कर दिए होंगे. अगर कोई भी है, so I would love to take them in comments in the comment section of this video. So thank you all for attending this session. Let's we'll meet again soon. Thank you.